Hello everyone. I am Suchita Mukhopadhyay and I am a graduate from IIT ISM Dhanbad. And I have been associated for the last 7 years with many of the top coaching institutes in India. And as you all know that this is the time for lockdown, and in this lockdown many of us have had many realization, and I had this realization that why not bring the coaching industry to your home so that you can prepare for your need sitting at the comfort zone of your family and in your house itself without having to take any extra burden on you. So here I am, here to present my service to all of you. If you like my teaching, please do subscribe and like the video. Thank you so much. So today we will be starting with the chapter Reproduction in Organism. As you all know that this is the first chapter of your 12th biology, Reproduction in Organism. But before I start about this chapter in details, I would like to tell you a few things. Not only for this chapter, but in the entire course that we will be completing in this academic year. During this entire course, we will be following NCERT as our Bible. Yes, dear students and friends, obviously you all are because you all will be supporting me. So you have to study NCERT by heart. When I was there in the offline coaching industry, I used to always tell my students that you have to know everything of NCERT. If I wake you up at 2 a.m. at night and ask you a line from NCERT, it should be there in your brains. And I think that with me, if you keep a pace with me and you continue to study with me, I will be successful in making this happen to you. You will be able to remember each and every line of NCERT. This is my promise. So with this, I'll be starting with the first chapter, that is reproduction in organism. Now tell me something. When I am talking about reproduction, you all have studied about reproduction for a very, very long period of time. Yeah, from class 3, 4 till your 10th standard, 11th standard, and now it's 12. Yeah, it's just like this for you. So reproduction in organism, reproduction word means what? Yes, it means a process by which one organism can give rise to young ones or its offsprings, right? That is known as reproduction. So this chapter, it is actually like a connecting link between your 11th and your 12th. This chapter is very easy, but it is equally very important, right? So let's get started. So I will be taking the pen. Just a second. I'll just take the pen for you all. First thing that I will be writing here is the definition of reproduction. Yes, the definition of reproduction, that is, it is a process. What did I say? It is the process of giving rise to young ones, right? This is what we mean by reproduction. Or you can say giving birth to young ones. Same thing. You can give rise to a young one or you can give birth to a young one. That process is known as reproduction. But see, before we understand the various types of reproduction, before we understand the process of reproduction, we have to understand something. That is the lifespan of an organism. So let's start with it. So lifespan is the period between birth to natural death of an organism. What is lifespan? It is the period between birth to the natural death of the organism. Now there is a very important thing that you have to remember, that lifespan is independent of the size and complexity of the organism. Yes, students, I repeat that it is independent of the size and complexity of the organism. It is not necessary that if an organism is large, it will have a large lifespan, or an organism is small, so it will have a less lifespan, right? So it is not directly correlated. You cannot say that lifespan is directly correlated to the size and complexity of the organism. So here we have an example. We'll see the images.
let me tell you, this is biology, not history. You do not need to mug up everything. You have to apply your brains. Yes, I know many of you think that okay, biology है तो हम क्या कर लेंगे, हम तो रट्टा लगा लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता बेटा. ये एक सब्जेक्ट है जो साइंस में आता है, तो आपको हर चीज ना समझना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा हम लोगों से, हम लोग इमेजेस के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू ये सारा चीज हम लोग आसान कर लेंगे. बट येस, देयर विल बी सम एग्जांपल्स विच यू हैव टू रिमेंबर. जैसे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज होते हैं, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स होता है. कोई बड़ी बात नहीं है. तो आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर सकते हो तो बायोलॉजी तो कोई बात ही नहीं होना चाहिए, राइट? सो here we have the image of what? We have the image of parrot and we have the image of a crow. So if I talk about the lifespan of a parrot, it is only 140 years. Yes, it's a long time, but still I'll say it is only 140 years because there are many organisms with a much more higher lifespan, right? So the parrot has a lifespan of 140 years. And here you have a crow. The crow has a lifespan of only say 15 years. The crow has a lifespan of only say 15 years. Both of them are birds. Both of them are almost equal in size and both of them are almost having the same complexity. But still you see how widely they vary with respect to their lifespan. Yes, the lifespan of parrot is 140 years and the lifespan of crow is 15 years. Is it clear to you? Let me take another example. Let me discuss the lifespan of people and mango tree, right? If I compare the lifespan of people and mango tree, people and mango, both of them belongs to angiospermae. Yes, students, just have a quick recall. What is angiospermae? Can I expect you to answer this? I know you all will be readily available to answer this. Yes, angiospermae means what? It means the flowering plants. Angiospermae means the flowering plants. So both of them are flowering plants, but let me tell you, the people has a lifespan of 2500 years, or you can say 2500 years. See, I told you there are many organisms with a much higher lifespan than a parrot. So people tree has a lifespan of 2500 or 2500 years, and mango has a lifespan of only 200 years. It has a lifespan of only 200 years. So again, what are we trying to understand? Yes, we are trying to understand that the size and the complexity of the organism is not directly correlated to the lifespan of that organism. Is it clear to you? Let's move on to the next slide. So here the same thing is given. Mango has a much shorter lifespan as compared to people. Now here there is a word, or there is a sentence that says lifespan can vary from few minutes to several thousand years. Yes, let me take an example. You all have heard about E. coli. Come on, you're in your 12th standard. You have at least heard of E. coli, Escherichia coli, correct? So you have studied this in biological classification, Kingdom Monera, right? If you don't remember Kingdom Monera, don't worry, I'm here and I will be solving whatever doubts you have, okay? And let me tell you, in this course of chapter, while you're seeing the video, if you have any doubt, so you can always write it in the comment section and I'll be ready and very happy to answer you back. Right? But you should not go to bed after listening to this lecture with a doubt in your mind. So now the lifespan of an organism can vary from few minutes. So in Escherichia coli, students, it has a lifespan of 20 minutes. Now let me tell you, this information is again very important. क्यों important है भाई? एक तो ये E. coli आप लोगों ने मोनेरा में पढ़ा है, अभी आप लोग reproduction in organism में पढ़ रहे हो, और एक बात बताएं आपको, ये तो बायोटेक में भी आएगा. ये जो ई कोलाई का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये बायोटेक में भी आएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मॉल बायो में भी आएगा. तो ये ई कोलाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है. तो ई कोलाई से प्यार कर लो, ठीक है? तो ई कोलाई हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स मतलब वो 20 मिनट में के अंदर बॉर्न भी होता है, ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, फिर डेथ भी हो जाता है. 20 मिनट, बस 20 ही मिनट में ये काफी है उसके लिए करना, ठीक है? एंड देन देयर इज
there are some organisms which have lifespan of several thousand years. जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा 2500 years और 2500 years in case of people. Correct? Now, whatever be the lifespan, कुछ भी हो जाए, किसी पीपल ट्री का 2500 साल भी वो क्यों ना जिंदा रह जाए, लेकिन उसके बाद भी डेथ इज इनएविटेबल. बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म में डेथ तो जरूर आएगा, राइट? सो डेथ इज इनएविटेबल. लेकिन here's a twist, लेकिन there are unicellular organisms which are considered to be immortal. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. देखो यहाँ पे एक आप लोग, ये मान लो एक बैक्टीरियल सेल है. ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बताओ ये क्या है, बता सकते हो? मुझे पता है आप लोगों को पता है, ये न्यूक्लियोइड है. न्यूक्लियोइड क्या है अगर भूल गए हो तो न्यूक्लियोइड है क्या? जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियोइड क्या है बेटा? ये है जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया. इसका डिटेल्स अगर आपको याद नहीं है तो फिर से बोल रही हूँ, डरने की बात नहीं है. हम जब साथ थे तब सब हम लोग ठीक कर ही देंगे. करेक्ट? तो ये मान लो एक इकोलाई सेल है, ये एक बैक्टीरिया है, उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड है. अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा. दिस बैक्टीरिया विल ग्रो, राइट? और उसके बाद वो क्या करेगा? वो डिवाइड कर जाएगा. इट विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस 2 daughter cell. मतलब इसके बॉडी, द एंटायर बॉडी इटसेल्फ इज गेटिंग डिवाइडेड एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द 2 daughter cells. करेक्ट? तो आप लोग ये चीज समझ लो कि ये जो पेरेंटल बॉडी था, ये जो पेरेंटल बॉडी था, ये पेरेंटल बॉडी ही ग्रो किया और ये पेरेंटल बॉडी इटसेल्फ गॉट डिवाइडेड इनटू द 2 daughter cells. मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम. जो पेरेंटल बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन था वही एक ऑफस्प्रिंग का भी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है. तो इसके वजह से हम बोलते हैं दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर इमॉर्टल, राइट? सो लेट्स मूव अहेड. अच्छा, तो ये जो मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम और ये चार्ट लिया है रादर, ये बेटा मैंने एनसीईआरटी से लिया है. लेकिन देखो एनसीईआरटी में तो ये डैश बोल के छोड़ दिया है, आप लोगों को ढूंढना है. तो अब आप लोग नेट पे टाइम ज़ाया ना करो, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो हम क्या करेंगे, यही पे इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो मैं शुरू करती हूँ एलिफेंट से. एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है समवेयर अराउंड 40 to 60 ईयर्स. ओके, ये होगा समवेयर अराउंड 40 to 60 ईयर्स. रोज प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 5 से 7 साल. डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है समवेयर अराउंड 25 to 30 ईयर्स. बटरफ्लाई का दिया हुआ है 1 से 2 हफ्ता. क्रो का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 15 ईयर्स, 15 ईयर्स. और पैरट का भी 140 ईयर्स डिस्कस कर लिए थे. काऊ का जो लाइफ स्पैन होता है बेटा ये लिख लो 20 to 25 ईयर्स. ठीक है? और जो बैनियन ट्री का लाइफ स्पैन, सॉरी नॉट बैनियन, बनाना ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो है 25 ईयर्स. क्रोकोडाइल का दिया हुआ है 60 साल. हॉर्स का लाइफ स्पैन भी होता है 60 ईयर्स. ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन होता है समवेयर अराउंड 50 डेज मैक्स. सबसे ज्यादा से ज्यादा ये 50 डेज तक जिंदा रह सकता है. इसके बाद राइस प्लांट सिर्फ 3 से 4 महीना जिंदा रहता है. टॉर्टवाइज दिया हुआ है 100 से 150 साल जिंदा रहता है. और बैनियन ट्री मैक्सिमम 200 से 300 साल, 200 to 300 ईयर्स ये जिंदा रहता है. आप लोगों ने सब ने नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, आप लोगों को रैंडमली मान लो डॉग, रोज, पीपल, क्रोकोडाइल ये दे दिया. ठीक है? और आप लोगों को बोला कि अरेंज द फॉलोइंग. क्या क्वेश्चन आ सकता है यहां से नीट में? अरेंज द फॉलोइंग इन ascending order of their lifespan. Arrange the following in ascending order of their lifespan. ठीक है? और अगर आप लोगों ने लाइफ स्पैन नहीं याद किया बच्चे तो फिर ये क्वेश्चन सीधा सीधा 4 नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा. वहीं पे कोई बच्चा अगर ये चीज पूरा कर लिया तो फिर आपको पता होगा सबसे कम रोज का है, फिर डॉग का है तो सबसे कम रोज का है, फिर
डॉग का है, डॉग का कितना है 25 से 30 साल, रोज का कितना है 5 से 7 साल, उसके बाद क्रोकोडाइल का है कितना है 60 इयर्स है, और उसके बाद पीपल का है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? जिस ऑप्शन में होगा डॉग, सॉरी रोज कॉमा डॉग कॉमा क्रोकोडाइल कॉमा पीपल, वो ऑप्शन आप सही टिक करोगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि क्यों लाइफ स्पैन जरूरी है? सबको समझ में आ गया? तो आप लोग वादा कर रहे हो कि पढ़ लोगे, राइट? तो एक और बात बता दूं, आप लोग अगर हम लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर मैं हर रोज आप लोगों को कुछ कुछ शॉर्ट जैसे कि प्रैक्टिस शीट्स दूंगी, तो उससे आपका जो पढ़ाई होगा वो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कीप फॉलोइंग नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिप्रोडक्शन। अब आ रहे हैं हम मेन चैप्टर में। रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू यंग वंस। द offsprings then grows, matures and in turn produce new offspring. Thus there exists a cycle of birth, growth and death. मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुआ, बर्थ हुआ, अब ये ऑर्गेनिज्म क्या किया? ये ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ। इस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के बाद कुछ देर बाद क्या होगा? वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला आएगा एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या करेगा? उसका रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के बाद उसका डेथ हो जाएगा, है ना? और ये जो नया ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो अगेन सेम प्रोसेस करेगा, ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फिर डेथ हो जाएगा। तो आप देख रहे हो हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ में यही एक साइकिल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है फॉर जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। तो रिप्रोडक्शन की बेटा जरूरत क्या है? अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी बच्चा कि वहां पे फिर स्पीशीज का कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोगों को पता है टाइगर का जो रिप्रोडक्टिव रेट है बहुत कम है, तो इसकी वजह से टाइगर बहुत जगह पे एंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। और अगर चीता की बात करें बेटा, चीता तो एक्सटिंक्ट हो चुका है। मान लो कि आपका रिप्रोडक्टिव रेट कम हो गया तो देयर इज अ हाई चांस क्या कि आपका जो पूरा स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन एनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एनसीईआरटी बोलता है कि बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, whether only one parent is involved in reproduction or two parents are involved in reproduction, based on that आप reproduction को दो ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और वो दो कैटेगरी क्या है? एग्जैक्टली एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली इट इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, it will involve one parent, correct? Whereas in sexual reproduction mostly it will involve two parents. ठीक है? अब एक बात आपको बता दूं, यहीं पे बता दूं क्योंकि ये फिर से बाद में आएगा, फिर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे बहुत मन कर रहा है आप लोगों को समझाने के लिए। ये चीज जो है ना बायोलॉजी का एकदम क्या बोलूं, एक पिवोट है, उसी के चारों ओर बायोलॉजी घूमता है, रिप्रोडक्शन घूमता है, सब कुछ घूमता है। जब भी आपको कोई पूछे, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ, तो बहुत लोग यहाँ पे है, कितने लोग, अच्छा बस आप सोचो कितने लोगों ने सोचा गैमीट फॉर्मेशन बोल दूं। देखो गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा वो मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मियोसिस, वो है मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिविजन, या फिर एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सिनगैमी। याद रहेगा सिनगैमी का मतलब क्या है? आप लोगों को पता है, मुझे पता है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को बोलते हैं हम सिनगैमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन होता है, एक है मतलब और नॉट कैटेगराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन होता है।
वन इज सिनगैमी एंड द अदर वन इज मियोसिस। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। अच्छा, तो मेरे को आप लोगों को एक क्वेश्चन देना है। आई हैव अ क्वेश्चन टू गिव इट टू यू ऑल, राइट? तो द क्वेश्चन इज कि is or does a bacterial cell undergo sexual reproduction? If the answer is yes, then why yes? If the answer is no, then why no? Is it clear? I repeat the question. Does a bacterial cell undergo sexual reproduction? And the answer should come to me in the comment section with reason. Okay? Now, asexual reproduction में इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट, और इसके वजह से देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। व्हाट आर क्लोन्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए फिर हम लोग लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जनरली ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एंड इस प्रोसेस में कोई भी गैमीट फॉर्मेशन जनरली एब्सेंट होता है। गैमीट फॉर्मेशन जो होता है वो जनरली एब्सेंट होता है, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन इन केस ऑफ अमीबा। अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेल है, करेक्ट, यहाँ पे ये रेड वाला जो गोला देख रहे हो ये क्या है, ये तो न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस फिर देखो डिवाइड किया न्यूक्लियस, सेल का ग्रोथ हुआ, फिर डिवाइड किया न्यूक्लियस, और फिर क्या हुआ, ये पूरा जो इसका प्रोटोप्लाज्म है इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। सो दिस इज हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। मतलब इनिशियली देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट, इनिशियली देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट, और वन पेरेंट से क्या प्रोडक्शन हो रहा है, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल्स। फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये दोनों डॉटर सेल्स को हम बोलेंगे क्लोन्स। क्यों बोलेंगे क्लोन्स, अभी बताओ? नहीं, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन टू पेरेंट्स participate in the reproductive process, two parents participate in reproductive process and involves the fusion of the male and female gamete, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था, है ना? मैडम को तो सब पता है कि जो की होता है सिनगैमी, है ना? जो सिनगैमी होता है, जो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसके बिना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके अलावा, सिनगैमी के अलावा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जवाब मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम डिस्कशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल्स। वही बात मैडम इतनी बार क्यों कह रही है? क्योंकि बेटा मैडम ये चाहता है कि जब तक ये सेशन ओवर हो जाए तब तक इतना भी टेंशन ना रहे कि अरे घर में बैठ के तो फिर से पढ़ना है। अगर आप यही पे फुल कंसंट्रेशन दे रहे हो, मैं एक ही बात इतनी बार बोलूंगी कि आपके दिमाग में ना पूरा चीज बैठ जाएगा, ठीक है? तो asexual reproduction in this method, a single individual is capable of producing young ones. बहुत सही है। And as a result, the offsprings that are produced are not only identical to one another, but they are the exact copies of their parents. क्योंकि there is the involvement of only single parent. देखो बेटा, meiosis होता है, is meiosis involved in asexual reproduction? सीधा जवाब है no, meiosis is not involved. अगर meiosis नहीं होता है तो फिर वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन नहीं हो सकता है, करेक्ट? तो अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है और ऊपर से तो ये सेक्स और फ्यूजन भी नहीं हो रहा है, meiosis भी नहीं हो रहा है, तो कोई चांस नहीं है बेटा कि वेरिएशन हो। तो इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चा, तो यहाँ पे क्या होता है, द टू
two cells are exactly identical to one another and to their parents. और इसी को हम बोलते हैं बच्चा क्लोन्स. तो क्लोन्स का डेफिनेशन क्या है? Clones is used to describe a morphologically and a genetically similar individual. जो individual morphologically बाहर के appearance से या फिर जीन के constitution से exact copy या फिर very similar to each other होगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे clones. समझ गए? Clear? Crystal clear all of you? Okay, let's move ahead. अब देखते हैं. Asexual reproduction is common in single celled organism. बहुत ज्यादा common है single celled organism, लेकिन it is also very common in case of plants and in case of lower animals. बहुत common है. तो in case of protists and monerans, the organism or the parent cell divides into two to give rise to two new individuals. In these organisms, cell division itself is a mode of reproduction. समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देती हूँ. ये मैं ऑलरेडी एक बार समझा चुकी हूँ. तो ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बच्चा. तो ये क्या कर रहा है? ये ग्रो कर रहा है. ग्रोथ के बाद क्या हो रहा है? सेल डिवाइड कर रहा है. और जैसे ही सेल डिवाइड किया, बेचारे के पास तो बस एक ही सेल है. आपका हाथ कट गया तो सेल डिवाइड होता है तो क्या होता है? आपका हाथ का हीलिंग होता है क्योंकि आप मल्टी सेल्यूलर हो. लेकिन यूनिसेल्युलर एक ही सेल है, उसका डिविजन हुआ, उसमें सेल डिविजन हुआ, तो फिर क्या बता सकते हो आप? तो फिर एक सेल से दो सेल बन गया. और जैसे ही दो सेल बन गया, वो दो सेल क्या हो गया? टू न्यू इंडिविजुअल्स हो गया. वो दो सेल्स क्या हो गया? दोस टू सेल्स आर टू न्यू इंडिविजुअल्स. क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. Many single-celled organisms reproduce by binary fission. Yes, they reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. Example है amoeba and paramecium. Example है amoeba और paramecium. चलो, हम ना क्या करेंगे, अब कुछ तो करना है, तो हम लोग ना थोड़ा बाइनरी फिशन के टाइप समझते हैं. यहाँ पे इस डायग्राम को देखो. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चा ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. अब मतलब क्या है? कुछ बड़ी बात नहीं है. इट्स वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है समझना. तो मान लो ये एक पैरामीशियम का सेल है. ये मैं देखो, एक तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, तो थोड़ा सा डायग्राम में मेरे को वैसे भी अच्छे से डायग्राम करना नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों को के लिए सीख रही हूँ. ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो. ठीक है, तो ये देखो, ये एक अगर पैरामीशियम का सेल है, तो ये सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. दिस सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड इसमें क्या बन रहा है? यहाँ से दो डॉटर सेल्स बन जा रहे हैं. लेकिन हाउ इज इट डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू इक्वल हाफ? थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस. थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है मैडम? हाँ मैडम बता रही है. ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है हॉराइजॉन्टल एक्सिस. देखो, ये हॉराइजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड किया. देखो आप डायग्राम देखो, ये हॉराइजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड किया और इसने प्रोड्यूस किया टू डॉटर सेल्स. समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, एक और टाइप समझाती हूँ, अमीबा. अमीबा ड्रॉ करना बहुत आसान है मेरे लिए. जिसको ड्राइंग नहीं आता उसके लिए तो अमीबा ड्रॉ करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, राइट? बिकॉज उसका तो कुछ भी शेप कर दो, इट इज लाइक ओके. तो अगर आप अमीबा की बात करो, तो फिर ये अमीबा में आप लोग इस अमीबा को ना, आप कोई भी प्लेन से, कोई भी जहां से मन करे, जस्ट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन ऑफ डिविजन. सो दिस इज नोन एज सिंपल बाइनरी फिशन. सिंपल बाइनरी फिशन का अर्थात क्या है? मतलब क्या है बताओ? मतलब प्रोडक्शन ऑफ two daughter cells, production of two daughter cells by dividing the parent cell, by dividing the parent cell through
any plane of division, through any plane of division. समझ में आ गया? क्लियर? अगर ट्रांसवर्स एक्सिस से होता है तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है. एग्जाम्पल क्या बोली थी मैं? पैरामेशियम बोली थी. अगर कोई भी प्लेन जिस तरफ से तुमको मन करे उसी तरफ से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो एंड देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल्स, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सिंपल बाइनरी फिशन. और एक और भी होता है जो कि यूग्लिना के केस में होता है. आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. यूग्लिना ऐसे दिखता है ना, ये एक प्रोटिस्टन है, राइट? यूग्लिना. तो यूग्लिना को अगर बच्चा डिवाइड करना है तो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट थ्रू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. यू हैव टू डिवाइड इट थ्रू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन. ठीक है, मैं BF लिख रही हूं फॉर द वर्ड बाइनरी फिशन. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, यूग्लिना. एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, यूग्लिना. ठीक है, तो ये सब में आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए. ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो अब यहाँ पे देखो, देयर इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ईस्ट में होता है. Yeast, though it is a unicellular organism, can anybody of you tell me which family or which kingdom does yeast belong to? I know all of you know this. Yes, yeast belongs to family. Can you tell me the class? Can you tell me the class? Yes, the class is Ascomycetes. Absolutely correct. अगर याद नहीं है, मैडम फंगाई से तो डर लगता है, मैडम को खुद डर लगता था, लेकिन मैडम ने कुछ ऐसा बनाया है जिससे अब फंगाई में डर लगने वाली कोई बात ही नहीं है. ठीक है, तो मैं आप लोगों को फंगाई भी पढ़ा दूंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Is it clear? Like the video and subscribe to my channel and you will get all the regular updates. और जो आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना है तो मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वो चैप्टर भी पढ़ा सकती हूँ. और किसी को अगर क्रैश कोर्स चाहिए, क्योंकि नीट का डेट अनाउंस हो चुका है, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, तो फिर आप लोगों के लिए मैं एक क्रैश कोर्स भी करवा सकती हूँ इन दिस अपकमिंग 2 months. कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा बायो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी, वर्ड ऑफ ऑनर. चलो, इन ईस्ट the division is unequal and a small bud. देखो, पढ़ते नहीं है, डायग्राम देखते हैं, समझ लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट में क्या हुआ है? यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ आया है. देयर इज अ स्मॉल आउटग्रोथ. दिस स्मॉल आउटग्रोथ इज नोन एज बड. और ये बड धीरे धीरे क्या करेगा? ये बड धीरे धीरे ग्रो करेगा, और जैसे ही ग्रो करेगा थोड़े दिनों के बाद इट विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट. थोड़े दिनों के बाद इट विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट एंड it will develop to a new individual. It will develop to a new individual. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं budding in case of yeast. और इससे भी नीट में बहुत क्वेश्चन आ चुका है, आएगा, आप लोग मार्क कर लो. ठीक है, स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. अब देखो, देयर आर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर found in case of fungi and in simple plants such as algae. स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे फंगाई और algae में होता है जूस्पोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो डायग्राम है NCERT से लिया हुआ है. दिस इज द जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास. अब मेरा क्वेश्चन आने वाला है, आप लोगों ने तो समझ लिया ही होगा. क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास क्या है? याद करो, मुझे पता है आप लोगों को याद आ गया होगा. इट इज अ ग्रीन एल्गे. क्लेमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गे. क्या बोलते हैं हम ग्रीन एल्गे को? क्लोरोफाइटा. याद आ रहा है? क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी ऐसे बोलते हैं, है ना? तो फिर यहाँ पे देखो, ग्रीन एल्गे में दिया हुआ है, दिस इज द जूस्पोर्स, राइट? तो एक चीज देख लो, जूस्पोर बहुत ज्यादा कॉमन है इन केस ऑफ एल्गे, लेकिन जूस्पोर का फॉर्मेशन अगर आप लोगों को याद है, ऊमाइसेटिस फंगाई में
एक था फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस के अंदर था, अगर आप लोगों को याद है, फंगाई में एक था फाइकोमाइसिटिस, एक और फाइकोमाइसिटिस वाज डिवाइडेड इनटू ऊमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस। और ये ऊमाइसिटिस के अंदर, यही ऊमाइसिटिस के अंदर there was the presence of aquatic fungi, there was the presence of aquatic fungi, and most of them used to divide or produce or have asexual reproduction by zoospore formation। इतना याद नहीं है तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकॉल करवा रही हूँ। मैंने क्या बोला, ये चैप्टर में हम लोग लिंक कर करके पढ़ाएंगे, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे इस चैप्टर के साथ। हम लोगों को इस चैप्टर के साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहां मौका मिलेगा हम वहां पे लिंक करेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला, तो ग्रीन एल्गे में यहाँ पे ये जो डायग्राम है, दिस इज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, जूस्पोर फॉर्मेशन ज्यादातर एल्गे में दिखता है, लेकिन इन फंगाई ऑल्सो, फंगाई देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस में क्या होता है, ऊमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस, और इसी ऊमाइसिटिस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द फंगल सेल्स और फंगाई दैट आर प्रेजेंट इन ऊमाइसिटिस, दे आर एक्वेटिक फंगाई एंड दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए, जूस्पोर में ये क्या है, ये जो दो सुर जैसा दिख रहा है ये क्या है, ये है फ्लैजेला, करेक्ट। आप लोग सही सोचे हैं, ये है फ्लैजेला। और फ्लैजेला क्या करता है, इट हेल्प्स इन मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या है, एग्जैक्टली मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट, करेक्ट। तो फ्लैजेला में क्या है, सो इन दिस zoospores there is the presence of flagella, and zoospores are therefore motile spores। zoospores देखो यहाँ पे लिखा है, zoospores are motile spores। अब एक चीज देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, कैन यू सी द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का नाम है जूस्पोरांजिया। इस स्ट्रक्चर का नाम है जूस्पोरांजिया। और इस जूस्पोरांजिया के अंदर क्या है, इस जूस्पोरांजिया के अंदर है जूस्पोर्स। इस जूस्पोरांजिया के अंदर है जूस्पोर्स। तो इसीलिए जूस्पोर्स आर नोन एज endogenous spores। इसलिए as the zoospores are produced within the zoosporangia, I repeat, as the zoospores are produced within the zoosporangia, इसलिए हम बोलते हैं कि zoospores are endogenous spores। तो आप लोगों को तो एक बात समझ में आ गया कि zoospore क्या है, they are the structures of asexual reproduction, करेक्ट। तो अब एक बात बताओ, ये जो स्पोर्स है इसका जो वॉल होगा, ये थिन वॉल होगा या फिर थिक वॉल होगा, बताओ, सोच के बताओ। बहुत इजी है, देखो आप लोगों को याद है एंडोस्पोर या फिर जहां कहीं पे भी थिक वॉल स्ट्रक्चर है वो जनरली क्या है, टू ओवरकम एनी अनफेवरेबल सिचुएशन। लेकिन ये क्या है, दिस स्पोर इज हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेल डिविजन। तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो फिर उसका अगर वॉल बहुत थिक हो जाएगा तो फिर सेल डिविजन में प्रॉब्लम आ जाएगी, करेक्ट। तो इसलिए हमेशा याद रखना, द स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इफ दे आर स्पोर्स, दे आर जनरली थिन वॉल्ड। याद रखना बेटा, बी इट जूस्पोर्स, बी इट क्या बोलते हैं उसको, कोनिडिया, ये सारी चीजें जो है इनका जो वॉल होगा वो थिन वॉल्ड होगा, याद रहेगा। एंड द जूस्पोर एज इट इज प्रेजेंट विद इन द जूस्पोरांजिया, it is known as endogenous spores। let's move on। other common asexual spores, कोनिडिया। बताइए अब कहाँ पे मिलता है कोनिडिया। कोनिडिया मिलता है एस्कोमाइसेटिस में, कोनिडिया मिलता है एस्कोमाइसेटिस में। अरे मैडम अभी तो आपने बोला कि एस्कोमाइसेटिस है ईस्ट और ईस्ट में होता है बडिंग। बेटा ईस्ट इज द ओनली और इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ यूनिसेल्युलर फंगाई, राइट। यूनिसेल्युलर फंगाई बिलोंगिंग टू एस्कोमाइसेटिस, राइट। लेकिन बाकी के जितने भी मेंबर्स है वो मेजॉरिटी क्या है, मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। तो मल्टी सेल्युलर एस्कोमाइसेटिस के लिए कोनिडिया होता है। सिर्फ एस्को ही नहीं, ड्यूटेरोमाइसेटिस, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है, ड्यूटेरोमाइसेटिस इज फंगी इम्परफेक्टी। इसको हम फंगी इम्परफेक्टी भी बोलते हैं बिकॉज इसमें कोई परफेक्ट मोड ऑफ सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें कोई परफेक्ट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फंगी इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। तो एक बात बता दूं, कोनिडिया प्रेजेंट है ड्यूटेरोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस में, ये है कोनिडिया इन केस ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बहुत नाम पहचाना हुआ है ना, जाना पहचाना हुआ है। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ से ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सेरेंडिपिटी, या फिर आप बोल सकते हो बाय चांस, ही डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, राइट। उसके अलावा क्या हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, बर्ड्स हाइड्रा में भी है, देखो ये एक एनिमल है तो इसमें भी बर्ड का प्रोडक्शन होता है जैसे कि इस सेल में है, और जेम्यूल्स का प्रोडक्शन भी होता है। जेम्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड स्पोर्स, दे आर स्पेशलाइज्ड स्पोर्स within an opaque covering, okay, within an opaque covering, जो कि once they are released they produce new individual. It is generally seen in case of sponges, ठीक है। let's move on। अब आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। यस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये जो टर्म है, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स। ये बहुत कॉमनली यूज्ड होता है प्लांट्स के केस में। देखो प्लांट्स में क्या होता है, कभी कभी प्लांट के एक बॉडी पार्ट, अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट इटसेल्फ कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट, एंड दोस पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, we will call it as the vegetative propagule। तो देखते हैं अब इसको डिटेल्स में। the term vegetative reproduction is frequently used in plants। in plants the units of vegetative propagation are, जो vegetative propagules है वो हो सकता है रनर। अच्छा, मैं एग्जाम्पल साथ में कोशिश करती हूँ। ग्रासेस में मिलता है राइजोम, राइजोम कहाँ मिलता है, जिंजर में मिलता है, बनाना में मिलता है। ये जो है ये डायग्राम है राइजोम ऑफ जिंजर का, राइट। उसके बाद साकर, साकर कहाँ मिलता है, साकर यू कैन फाइंड इट इन स्ट्रॉबेरी। देन यू हैव क्यूबर, क्यूबर यू कैन इजीली फाइंड इट इन पोटैटो। इसके बाद ऑफसेट है, ऑफसेट हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, एक और बार पढ़ेंगे। इट इज फाउंड इन पिस्टिया एंड वाटर हायसिंथ, जिसको हम बोलते हैं आईकॉर्निया। आईकॉर्निया और पिस्टिया में मिलता है ऑफसेट। बल्ब कहाँ मिलता है, बल्ब मिलता है अनियन में। देखो ये सारा जितने भी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारा आप लोग अच्छे से 11th में कर चुके हो, और इसमें तो क्वेश्चन यही आता है विथ एग्जाम्पल, इसमें इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। पोटैटो में देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आई ऑफ पोटैटो। आई ऑफ पोटैटो क्या है, आई ऑफ पोटैटो इज द एक्सिलरी बड, and this eye of potato can give rise to young ones, can give rise to new plant, प्लांट या प्लांटलेट, जो मन करे लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है नीट का, आप लोग पेपर देख लीजिएगा। आई ऑफ पोटैटो इज व्हाट, एडवेंटिशियस बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ये बर्ड वो बर्ड। तो आपको आंसर क्या लिखना है, आपको आंसर उसी ऑप्शन को लिखना है जिसमें लिखा रहेगा कि इट इज एन एक्सिलरी बर्ड। समझ गए, ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बड्स ऑफ द potato tuber from the rhizome of banana and ginger invariably arise from the nodes present at the modified stem of these plants। अच्छा, अब एक बात बताओ, nodes क्या है? nodes are the structures, nodes क्या है? nodes are the structures which give rise to branches and say flowers etc। branches, flowers etc को जो गिव राइज करेगा दैट इज नोन एज द नोड्स।
Similarly, adventitious buds arise from the notches present at the margin of the leaf. The adventitious buds are in case of bryophyllum. ये देखो, ये bryophyllum में देखो, आप लोग एक चीज ना बिल्कुल गड़बड़ मत करना, पोटैटो में है एक्सिलरी बड, लेकिन अगर हम लोग ब्रायोफिलम एक बहुत ही मोटा टाइप का एक लीफ है जिसके नॉचेस में, दीज आर द नॉचेस, ये जो कोना है ना, दीज नॉचेस, इसके नॉचेस में प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द एडवेंटिशियस बड। और ये एडवेंटिशियस बड से देखो नया प्लांटलेट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये प्लांटलेट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। समझ गए आप लोग? तो ये सारा था आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैंने बोला था, ऑफसेट हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इट इज फाउंड इन केस ऑफ पिस्टिया। वैसे तो साइंटिफिक नेम ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आप लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन वाटर हाइसिंथ। अब यहाँ से बेटा लिख लो, फिर मेरे को याद करना बाद में कि नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आने का चांस है 100%। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ को हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। जब एम्स रहता था, जब एम्स में असर्शन रीजनिंग्स रहते थे, तब ये असर्शन रीजनिंग में एम्स का तो बहुत ही ज्यादा करीब वाला क्वेश्चन था, बहुत आते थे बट बेटा ये क्वेश्चन तो अब जबकि एम्स नहीं है तो एक चांस ये भी है कि ये क्वेश्चन आप नीट के पेपर में भी देख सकते हो। नीट के पेपर में वैसे भी आता था, एम्स में भी आता था, नीट में भी आता था, और अभी इसके आने के चांस या संभावना और भी बढ़ गई है। ठीक है, सो सिंस अब देखो ऑफसेट, अब इसको टेरर ऑफ बंगाल हम लोग क्यों बोलते हैं? देखो अभी हम लोग आइकॉनिया या वाटर हाइसिंथ को हर जगह देख पाते, वी सी इट एवरीवेयर। जहां कोई भी एक वाटर बॉडी देखोगे, स्टैंडिंग वाटर बॉडी, वहीं पे आप लोग देखोगे कि वहां पे आइकॉनिया या फिर वाटर हाइसिंथ का ग्रोथ है। लेकिन डोंट बी सरप्राइज्ड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट ये जो वाटर हाइसिंथ है बेटा, ये ना इंडिया का प्लांट तो है ही नहीं। It was introduced in India by the Britishers in West Bengal. ब्रिटिशर्स तब वेस्ट बंगाल को अपना कैपिटल किए थे और उन लोगों को बहुत शौक था यही आइकॉनिया का, सो दे ब्रॉट इट एंड दे प्लांटेड इट इन बंगाल, राइट। लेकिन आइकॉनिया का क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, तो इसलिए वो रैपिडली विद द हेल्प ऑफ द ऑफसेट वो रैपिडली डिवाइड करने लग गया, राइट। इट स्टार्टेड डिवाइडिंग वेरी रैपिडली, और उसकी वजह से फ्रॉम बंगाल इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। इमेजिन, फ्रॉम बंगाल इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। समझ गए? तो इसके वजह से इतना ज्यादा रैपिडली ये ग्रो कर सकता है कि जहां पे ये ग्रो कर रहा है बच्चा, वहां के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ऑक्सीजन लेवल है, उसको टोटली डिप्लीट कर देता है। इसीलिए जो एक्वेटिक लाइफ रहती है वहां पे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, टोटली इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, right? So since, let us see what is written here, since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. तो इसीलिए हम लोग आइकॉनिया या फिर वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। सो इट ड्रेन्स द ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कह दिया था, ड्रेन्स द ऑक्सीजन विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिश। Today it is star star star, question question question, आने वाला है आने वाला है आने वाला है। So today it is one of the most invasive aquatic weed found wherever there is standing water, flowing water में वो बह जाता है। ये इसको अगर अच्छे से किसी जगह पे ग्रो करना है, so it will always prefer a standing water। ठीक है, तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि आप लोगों ने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आई विल कम बैक टू यू विद अनदर अमेजिंग सेशन ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, एंड प्लीज इफ इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम get back to us. Thank you all so much.